Dear friends, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture number 6, and that is about the fly leveling, profile leveling and cross sectioning. So here in previous lecture we have seen that how we can calculate the RL of the different point by using height of instrument method and by using rise and fall method. So in height of instrument method, whenever there is a change point, we calculate the new height of instrument, and that is RL of the benchmark plus backside. So in that way, from that height of instrument we deduct the intermediate side or four-side reading, and then we will get the RL of that point. So in that way, in the height of instrument we enter the observation into the page of field book, and by calculating the height of instrument, from that we will calculate the RL of the different points. Similarly, in the rise and fall method, we are interested to calculate the rise or fall of the next survey point. So where when we take the number of observation, we have to enter into the page of field book and previous observation minus next observation. That value we calculate. Now if that value is positive, then we enter it into the rise column. So it indicates that the next point is higher on the higher elevation than previous point. So in that way, when the next point is at higher elevation and the previous point is at lower elevation, so the staff reading at previous point is more and staff reading at next point is less. So the answer comes out to be positive, and that difference that we enter into the rise. So it indicates the by which distance the next point is higher than previous point. Similarly, from the observation of previous point we deduct the observation of next point, and if the difference is negative, it indicates that the next point is at the lower height from the previous point. So it indicates the fall, means next point is little bit lower than the previous point. So that difference is negative and we enter into the fall column. By entering this type of difference of every consecutive points staff reading, we can calculate the rise and fall. And from that rise and fall, we can calculate the RL of the different points. So first RL minus rise or fall is equal to next RL. Then again from that again rise and fall, so next RL. So likewise the RL of the previous point plus minus rise or fall is equal to RL of the next point. By that way we are calculating the RL of the different points. But that is not only the objective of the leveling survey. So the objective of leveling survey is again we have to carry out some of the field application, and that field application that is all about either fly leveling or profile leveling or cross sectioning. So in this lecture, now today we will talk about fly leveling, then profile leveling and then cross sectioning. So first of all we will go for understanding what is fly leveling. So there are two main objective of the fly leveling. फ्लाई लेवलिंग यदि हमको करना है तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होते हैं. पहला है एक फ्लाई लेवलिंग का, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द फ्लाई लेवलिंग इज. फ्लाई लेवलिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफर द परमानेंट बेंचमार्क ऑन टू द साइट. मीन्स इफ द परमानेंट बेंचमार्क यदि हमारा पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में बना हुआ है, मीन सी लेवल से उसकी हाइट हमको पता है और वहीं आरएल हमको किसी फील्ड में ब्रिज के साइड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसे केस में मुझे अलग अलग पॉइंट्स का आरएल नहीं निकालना है. मुझे सिर्फ पहला पॉइंट और आखिरी का पॉइंट इसके अंदर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. तो मुझे सर्वे करना पड़ेगा और मेरा पर्पज़ है कि यहाँ का परमानेंट बेंचमार्क का जो आरएल है वो साइट के आरएल एक आधे पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र करना. तो ऐसे केस में अभी पीडब्ल्यूडी के ऑफिस से समझ लो साइट 7-8 किलोमीटर है, तो वहाँ पे हम लोग इतने दूर का सर्वे करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और 20-20 मीटर पे 30-30 मीटर पे पॉइंट नहीं लेंगे हम लोग. तो हम क्या करेंगे,
जितने दूर का डिस्टेंस ले सकते हैं हम लोग बैक साइड का, उतने दूरी पर लेवल रखेंगे तो परमानेंट बेंचमार्क के ऊपर एक बैक साइड आ जाएंगी हमारी। और फिर इधर जितने दूरी पे अगला स्टाफ रख सकते विजिबिलिटी के हिसाब से, वहाँ पर आप लोग 4 साइड ले लेंगे तो एकदम ज़्यादा डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा। अब जो पॉइंट हो गया उसके आगे इंस्ट्रूमेंट को और आगे शिफ्ट करेंगे और आगे शिफ्ट करके फिर से वहीं पे डबल से उसी पॉइंट पे बैक साइड लेना है तो वो बैक साइड के लिए फिर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर 4 साइड लेंगे अगले वाले पॉइंट पे। इस तरह से आपको सिर्फ क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है और रीडिंग आपका सिर्फ बैक साइड 4 साइड, उसके बाद में फिर से चेंज पॉइंट बना लो उसको, फिर बैक साइड 4 साइड, फिर उसको चेंज पॉइंट बना लो, फिर बैक साइड, फिर 4 साइड। तो हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको चाहिए जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज वी ओनली टेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक साइड एंड 4 साइड and then again shift the instrument, then back side and then 4 side and then again shift the instrument, and like way for a longer distance we reach to the site। तो इस प्रकार से हम लोग सिर्फ बैक साइड और 4 साइड का ऑब्जर्वेशन लेके कम से कम ऑब्जर्वेशन में हमारा परमानेंट बेंचमार्क का जो आरएल है वो ट्रांसफर कर सकते साइट पे। सो दैट इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्लाई लेवलिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम लोग जब किसी रोड का सर्वे करते, प्रोफाइल लेवलिंग वगैरह जनरली करते और रोड की लंबाई ऐसी 25 किलोमीटर का रोड है, उसका पूरा अर्थवर्क के लिए कैलकुलेशन करना है और हमको अलग अलग आरएल लेने हैं। तो रोड वर्क में तो जनरली हम लोग जब प्रोफाइल लेवलिंग करने वाले हैं, वी विल सी लेटर ऑन द आफ्टर दिस। सो इन द प्रोफाइल लेवलिंग आपको तो 20-20 मीटर के ऊपर पॉइंट लेना है और उसके ऊपर काफ़ी सारे स्टाफ रीडिंग लेना है। तो आप जब सुबेरे सर्वे स्टार्ट करेंगे तो 20-20 मीटर पे ऑब्जर्वेशन लेते 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 शाम तक समझ लो आपने 2 किलोमीटर का सर्वे पूरा कर लिया, यानी शाम होने का है, थोड़ा सा 1 घंटा बाकी है और 2 किलोमीटर का रोड का सर्वे पूरा करनी है आपने। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जहां तक आप 2 किलोमीटर पहुंच गए वहां से फिर से पहले पॉइंट तक लेवलिंग करते वापस आना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि दिन भर में हमने जो सर्वे किया उसमें यहाँ का आरएल और आखिरी के पॉइंट का आरएल आपको मिलेगा, तो वो आरएल कैलकुलेट है कि नहीं बराबर, उसका यदि चेक करना है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, शाम को 5 बजे वहाँ से शुरू करना पड़ेगा आखिरी के पॉइंट से और वापस सर्वे करते करते यहाँ पे आना पड़ेगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अब इतना सर्वे आपको 1 घंटे में या 1.5 घंटे में करना है आखिरी के, क्योंकि पूरा तो आप 20-20 किलोमीटर करते करते तो दिन लगा दिया आपने। जब वापस आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर होना चाहिए, लेकिन आपको वहाँ के पॉइंट से वहाँ के पॉइंट का आरएल और आपका जहाँ से स्टार्ट किया था उसका आरएल, इसका आपको रिलेशन निकालते आना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आपने शाम को सर्वे खत्म किया है वो टेम्पररी बेंचमार्क है अपना, वो टेम्पररी बेंचमार्क से बैक साइड फिर 4 साइड, फिर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे बैक साइड 4 साइड, फिर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे बैक साइड 4 साइड, ऐसा करते करते सर्वे करते करते वापस आएंगे। तो जब बैक साइड और 4 साइड ले रहे तो हम लोग जितना दूर दूर डिस्टेंस ले सकते उतना दूर दूर लेके पॉइंट लेंगे, तो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स एकदम कम रहने वाले हैं। और आप बैक साइड 4 साइड करते करते जहाँ से आपने सुबह सर्वे शुरू किया था उस पॉइंट पे आके फिर से आखिरी का रीडिंग 4 साइड का आप लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका आखिरी के पॉइंट का आरएल और पहले पॉइंट का आरएल ये आप टैली कर सकते। इसका मतलब आपने जो दिन भर सर्वे किया उसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं है और जो आपने आरएल कैलकुलेट किए उसको आप काउंटर चेक कर सकते। तो जहाँ से सर्वे शुरू किया था वहाँ से तो जहाँ पे सर्वे एंड किया उसका आरएल और ये टेम्पररी बेंचमार्क का आरएल, इसको मैच करने के लिए आपको फिर से एक बार रीचेक करने के लिए उल्टा लेवलिंग करते आना पड़ेगा। और उल्टा लेवलिंग करते समय हम लोग कम से कम पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे स्टाफ रीडिंग, और सिर्फ बैक साइड और 4 साइड ही लेंगे और हर बार इंस्ट्रूमेंट चेंज करते जाएंगे। बैक साइड और 4 साइड की 2 रीडिंग हो गए कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट, फिर बैक साइड और 4 साइड की रीडिंग ले लिए कि फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट। तो ऐसा जो सर्वे करेंगे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाई लेवलिंग। तो ये 2 मकसद हमारे हैं। पहला मकसद है कि हमारा परमानेंट बेंचमार्क यदि आपको साइड के ऊपर ट्रांसफर करना है तो आपको दूर दूर पॉइंट लेके बैक साइड 4 साइड लेके यहाँ का आरएल वहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अगेन फ्लाई लेवलिंग, wherein we are only taking the back side and 4 side reading and number of change points will be there. Similarly दूसरा हमारा है कि when after the completion of day work
पूरे दिन भर का वर्क आपने खत्म कर दिया तो आपका जो आखिरी का पॉइंट आपने वहाँ पे टेम्पररी बेंचमार्क आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन सुबह आपको फिर से वहाँ से आगे का सर्वे करना पड़ता। सो इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ रोड वर्क सर्वे, शाम को जहाँ पे खत्म किया वहाँ से जहाँ पे वापस शुरू किया था ना वहाँ तक का वापस सर्वे करते आना पड़ेगा आपको, रिवर्स रिटर्न सर्वे करना पड़ेगा, और वो भी फास्ट में करना पड़ेगा। तो सिर्फ बैक साइड और फोर साइड लेना है और दूर दूर डिस्टेंस लेना है, और कम से कम समय में आपको वापस फिर से जहाँ से स्टार्ट किया था उस पॉइंट का आरएल चेक करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे। तो ऐसे केस के लिए भी आप सर्वे करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉल्ड एज फ्लाई लेवलिंग। इसका मतलब क्या है कि हमने खूब सारे पॉइंट्स पे आरएल नहीं लिए, उड़ते उड़ते गए हम लोग फ्लाई। तो बैक साइड फोर साइड, नेक्स्ट बैक साइड फोर साइड, नेक्स्ट बैक साइड फोर साइड, तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते गए और बैक साइड फोर साइड लेते लेते ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके हमको सिर्फ पहले और आखिरी के पॉइंट का ही आरएल का मतलब है, बीच के पॉइंट का आरएल हमको निकालना नहीं था। तो उस पर्पस के लिए जब हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लाई लेवलिंग। सो फ्लाई लेवलिंग हियर इफ द वर्क साइट इज अवे फ्रॉम द बेंचमार्क, जैसा कि मैंने बताया कि परमानेंट बेंचमार्क आपका अलग जगह पे है, एंड सर्वेयर स्टार्ट द वर्क विद द बैक साइड ऑन द बेंचमार्क बाय सेटिंग आउट द इंस्ट्रूमेंट एट कन्वीनियंट पॉइंट, देन ही प्रोसीड टुवर्ड्स द साइट, यानी वो साइट की तरफ हमको सर्वे करते जाना है बाय टेकिंग द फोर साइड एंड बैक साइड रीडिंग। तो फोर साइड बैक साइड, फोर साइड बैक साइड इतना रीडिंग लेंगे, एंड दैट विल बी फॉर ए नंबर ऑफ चेंज पॉइंट्स। हर बार आपको चेंज पॉइंट लेना पड़ेगा टिल ही एस्टेब्लिशेज द टेम्पररी बेंचमार्क ऑन द साइड। जब तक आपका साइट नहीं आ जाती तब तक आपको सर्वे करना है। सो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन द रेस्ट ऑफ द लेवलिंग वर्क इज कैरिड आउट इन द साइट। एट द एंड ऑफ द वर्क अगेन द लेवलिंग इज कैरिड आउट बाय टेकिंग द सेट ऑफ कन्वीनियंट चेंज पॉइंट टिल द बेंचमार्क इज रीच्ड। तो पहले तो आपने यहाँ से सर्वे करते समय साइट पे ट्रांसफ़र कर लिया बेंचमार्क, फिर वहाँ का सर्वे जो भी होगा वहाँ से दिन भर में करते जाएंगे तो वापस वहीं पे आने पड़ेगा। तो उसके लिए यानी ये दो पर्पस के लिए हमको फ्लाई लेवलिंग करना होता है। सो हियर यू कैन सी दैट इन दिस फिगर सो व्हाट एक्चुअली द सेटअप इज। तो सबसे पहले ये जो है हमारा ग्राउंड पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट के हिसाब से सो दिस इज आवर ग्राउंड, और ये हमारी समझ लो ये साइड है, यहाँ पे ये हमारा परमानेंट बेंचमार्क है। इसका आरएल हमको मालूम है, समझ लो 200 मीटर। अब ये पॉइंट का आरएल के हिसाब से मुझे यहाँ पे टेम्पररी बेंचमार्क सेट करना है, टीबीएम सेट करना है। इधर मेरा फील्ड है, यहाँ पर इधर मुझे सर्वे करना है आगे का, लेकिन मेरा पीडब्ल्यूडी का बेंचमार्क यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का सर्वे करते जाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम मुझे रीडिंग लेना है। तो मुझे सिर्फ दूर दूर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और तब जाके मैं इसका आरएल भी कैलकुलेट कर पाऊँगा। तो इसके लिए हम लोग प्रोसीजर क्या करेंगे, तो पहला रीडिंग ले लेंगे बैक साइड का, फिर ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो रखा है ना ये एकदम दूर रखा है, यानी लाइन ऑफ साइट जितनी विजिबल है उतनी दूरी पे रखना है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा लेना पड़ता अपने को। फिर यहाँ पे ले लेंगे हम लोग फोर साइड, फिर ये फोर साइड हो गया कि इसको डायरेक्ट चेंज पॉइंट बना दो आप, चेंज पॉइंट बना के इंस्ट्रूमेंट हटा के फिर से नई जगह पे लेके जाओ और थोड़ा दूर रखो, जितना दूर का डिस्टेंस आप कवर कर सकते उतना कवर करो, और यहाँ पे फिर से आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया और फिर से आपकी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गई। तो यहाँ पे आपको फिर से रीडिंग लेना पड़ेगा बैक साइड का, फिर यहाँ पे ले लेंगे फोर साइड का रीडिंग, फिर यहाँ पे हो गया तो इंस्ट्रूमेंट को और एक शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमको और आगे तक पहुँचना है। फिर यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बना लिया आपने, फिर यहाँ पे उसी पॉइंट पे आपको फिर से बैक साइड का रीडिंग लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका चेंज पॉइंट, और फिर आखिरी का रीडिंग लेंगे यहाँ पे फोर साइड पे। तो इसके वजह से आपको ये ऑब्जर्वेशन के वजह से इसका आरएल आपको मालूम है, ये परमानेंट बेंचमार्क था आपका, और इस पे से आपने अभी टेम्पररी बेंचमार्क कैलकुलेट कर लिया, इसका भी बेंचमार्क कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से फिर आपका फील्ड का सर्वे जो भी शुरू करना है वो शुरू कर सकते। तो इस प्रकार से यदि हम लोग दूर दूर स्टाफ रीडिंग ले रहे हैं और बैक साइड और फोर साइड, सिर्फ बैक साइड और फोर साइड, बैक साइड और फोर साइड, और नंबर ऑफ चेंज पॉइंट्स ले रहे हैं, और इसका पर्पज़ क्या है कि ये परमानेंट बेंचमार्क साइड के ऊपर आपको ट्रांसफ़र करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लाई लेवलिंग, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब समझ लो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं। सो इन द फील्ड व्हाट हैपेंड, अभी ये आपका समझ लो एक टेम्पररी बेंचमार्क आ गया, तो टेम्पररी बेंचमार्क आने के बाद भी यहाँ से आप आगे सर्वे करते जाएंगे दिन भर। तो यहाँ पे जब सर्वे करेंगे दिन में तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 20-20 मीटर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट लेंगे ऐसे, और हर एक जगह पे स्टाफ रीडिंग ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सुबेरे सर्वे स्टार्ट करेंगे। ये आपका समझ लो फील्ड में का टेम्पररी बेंचमार्क है। यहाँ से आपने सुबेरे शुरू किया और 2 किलोमीटर का सर्वे किया आपने,
और 2 किलोमीटर करते करते आप यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे आपको अगले दिन के लिए टेम्पररी बेंचमार्क छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका अगले दिन का स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इसका जो RL है ये हमको चेक करते आना चाहिए कि जो कैलकुलेट करके आएगा वो बराबर है कि नहीं करके। तो आपने जब यहाँ से रीडिंग लिया तो इसका RL तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, इसका RL आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये मालूम हुआ वाला बराबर है कि नहीं है, दिन भर का जो सर्वे किया आपने 2 किलोमीटर का, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, उसको समझने के लिए आपको फिर से क्या करना है, आपको उल्टा सर्वे चालू करना है शाम के टाइम पे, और यहां से फिर सर्वे चालू करेंगे अपन इधर उल्टा। तो पहला रीडिंग बैक साइड का लेंगे यहाँ पे, और फिर दूर दूर इंस्ट्रूमेंट रखते हुए यहाँ पे लेंगे इसके ऊपर 4 साइड, फिर ये वाले पॉइंट को बनाएंगे चेंज पॉइंट, और फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे नए वाले जगह पे, और यहाँ पे फिर से लेंगे 4 साइड, और फिर ये यहाँ पे आपका ये इसको चेंज पॉइंट बनाएंगे, और फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके यहाँ पे रखेंगे, और ये नई हाइट हो जाएंगे, और यहाँ पे ले लेंगे बैक साइड, और फिर यहाँ पे ले लेंगे 4 साइड। तो आपने जहाँ पे सर्वे दिन शाम के टाइम पे एंड किया था वहाँ से वापस आपको फिर से यहाँ तक वापस आना है ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर सुबह के। लेकिन इतने के लिए आपको टाइम कम है, तो आप क्या करेंगे, दूर दूर पॉइंट लेंगे। सुबह जब सर्वे किया था तो 20-20 मीटर पे सर्वे करते करते गए थे हम लोग आराम से। अब वैसा नहीं करना है, आप दूर दूर रख के करना है, और ऐसा करते करते आप वापस आएंगे तो आपको सिर्फ बैक साइड 4 साइड, बैक साइड 4 साइड, बैक साइड 4 साइड ऐसे ही रीडिंग लेना है। और फिर इसका RL आप चेक कर सकते हैं, जितना RL आपने सुबह एज्यूम किया था ना उतने RL उल्टा कैलकुलेट करने के बाद भी निकलना चाहिए। तो टेम्पररी बेंचमार्क जो भी छोड़ते आप फील्ड में शाम के समय पे सर्वे सब खत्म करते समय, उसका चेक करने के लिए आपको शाम के टाइम पे वापस दूर दूर स्टाफ रीडिंग लेके वापस आना पड़ता है, और उसके लिए जो सर्वे कर रहे हैं, सो दैट सर्वे इज कॉल्ड एज फ्लाई लेवलिंग। सो इन दैट वे द कंसेप्ट ऑफ फ्लाई लेवलिंग वी आर यूजिंग इन द फील्ड for these two important purpose. अब now for example now this type of survey suppose we have carried out, तो उसके रीडिंग हमको इसमें अंदर कैसे भरने पड़ेंगे वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। So this type of fly leveling in which only the back side and 4 side reading are taken is called as fly leveling. सिर्फ बैक साइड और 4 साइड की रीडिंग ही ले रहे हैं हम लोग, तो इंटरमीडिएट साइड का कॉलम आपका यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैंक आएगा। रिमेंबर यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट आएगा नहीं यहाँ पे। सो देर विल नो एनी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग बिकॉज हमारा फ्लाई लेवलिंग की रीडिंग आप भर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द फ्लाई लेवलिंग देर इज नो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। अब उसके बाद में द पर्पज बीइंग टू कनेक्ट अ बेंचमार्क विद द टेम्पररी बेंचमार्क। तो सुबेरे एक आधे जगह का परमानेंट बेंचमार्क से शुरू किए तो आखिरी का टेम्पररी बेंचमार्क छोड़ने तक का जो काम है वो फ्लाई लेवलिंग से हो गया, या शाम को वापस आते समय वो टेम्पररी बेंचमार्क को चेक करने के लिए फिर से वापस आएंगे सर्वे करते करते, तो वो भी एक पर्पज हो गया। सो ऑल दैट इज कॉल्ड एज फ्लाई लेवलिंग। दस द डिफरेंस बिटवीन द फ्लाई लेवलिंग एंड द डिफरेंशियल लेवलिंग इज ओनली द पर्पज ऑफ द लेवलिंग, इतना ही फर्क है। बाकी डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग दोनों एक जैसे ही है, लेकिन डिफरेंशियल लेवलिंग में 20-20 मीटर पे पॉइंट लेके खूब सारे ऑब्जर्वेशन लेके RL निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसका पर्पज है प्रोफाइल निकालना ग्राउंड का। और फ्लाई लेवलिंग में हमारा पर्पज है TBM को ट्रांसफर करना, टेम्पररी बेंचमार्क को, या फिर परमानेंट बेंचमार्क को ट्रांसफर करना। So that is only the difference between the fly leveling and differential leveling. So now here, suppose in this example we will see that if this observation is taken, तो यहाँ पे हमने पहला बैक साइड का रीडिंग लिया 1.35 का, फिर हमने 4 साइड का रीडिंग लिया यहाँ पे 1.65 का, और इसको बनाया चेंज पॉइंट। तो ये चेंज पॉइंट बनाने की वजह से यहाँ पे अपन को फिर से डबल रीडिंग लेना पड़ेगा। सो 1.65 के बाद में ये चेंज पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे डबल रीडिंग लिया आपने, वो हो गया 1.40 का। फिर आपने यहाँ पे लिया 4 साइड, तो वो 4 साइड हो गया आपके 1.70 की। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया आपने, फिर यहाँ पर बैक साइड लिया तो बैक साइड आ गई आपकी 1.30 की, और आखिरी में यहाँ पे लिया है आपने रीडिंग, सो ये हो गया 1.86 का। तो ऐसे रीडिंग आपने लिए तो आपको 1 2 3 4 5 6 इतने रीडिंग मिलेंगे। अब इनको भरना कैसा है, तो सबसे पहला रीडिंग तो 1.35 का तो बैक साइड में आएगा, तो 1.35 वो यहाँ पे भर देंगे हम लोग। सो 1.35 इज द बैक साइड रीडिंग, और चेंज हो जाएगा उसका 0 मीटर। और इसका RL हमको यदि दिया है तो पहले इसका RL हम लोग हाइजूम कर लेंगे, समझ लो 100 मीटर, और दिस विल बी अवर बेंचमार्क। ये बेंचमार्क हो जाएगा हमारा।
और पहले पॉइंट का RL एज्यूम दिया होगा तो ले लो, नहीं तो 100 एज्यूम कर लो अभी का। सो ये हो गया। फिर अब यहाँ से दूसरा रीडिंग है 1.65 का, तो वो 4 साइड का रीडिंग है, तो डायरेक्ट 4 साइड यहाँ आ जाएगा, 4 साइड का रीडिंग 1.65। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया तो चेंज पॉइंट आ गया, तो चेंज पॉइंट मतलब ये सेकंड वाला ही हमारा चेंज पॉइंट रहेगा, चेंज पॉइंट 1। तो यहाँ पे फिर से बैक साइड का रीडिंग लिखना पड़ेगा, और वहीं पे रीडिंग लिया आपने 1.40 का, सेम पॉइंट पे रीडिंग लिया था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके बैक साइड लिया अपन ने, तो ये रीडिंग आ जाएंगी 1.40। फिर 1.40 के बाद में आगे गए आपने तो 1.70, फिर से 4 साइड का रीडिंग है, सो 1.70। फिर इसको भी चेंज पॉइंट बनाना पड़ेगा, तो इसके आगे भी आ जाएगा चेंज पॉइंट 2। तो चेंज पॉइंट पे बैक साइड का रीडिंग फिर से रहता, तो वो रीडिंग है हमारा 1.30, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया तो पीछे जो रीडिंग लिया वो 1.30 है, तो 1.30। और उसके बाद में आखिरी का रीडिंग है 1.86, तो ये आ जाएगा 1.86। तो इस प्रकार से ही रीडिंग आएंगे। तो यहाँ पे बैक साइड 4 साइड, बैक साइड 4 साइड, बैक साइड 4 साइड, बैक साइड 4 साइड, ऐसे ही रीडिंग आपको फ्लाई लेवलिंग के अंदर भरना है, और हर बार आपका चेंज पॉइंट आएगा, और फिर आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड करने पड़ेंगे, और फिर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या हो जाएगा, RL प्लस बैक साइड, तो ये हो जाएगा 101.35। और अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाला 4 साइड माइनस करेंगे तो यहाँ का RL निकलेगा, फिर इसी में से ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ का RL निकलेगा, फिर इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाला, तो ऐसा नहीं कर सकेंगे हम लोग, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारी हर बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदल रही है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदल रही है तो क्या है, तो पहला तो RL प्लस बैक साइड वो निकाल लिया मैंने 101.35। अब ये 101.35 में से ये रीडिंग माइनस करना पड़ेगा 1.65, 101.35 माइनस 1.65, तो ये आ गया 99.7, ये RL आ गया समझ लो 99.7। अब ये यहाँ पर चेंज पॉइंट है, तो जहाँ भी चेंज पॉइंट रहता वहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डबल से निकालना पड़ता, ये याद रखना है हमको, क्योंकि यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये वाली है, फिर दूसरे बार में ये वाली है, फिर तीसरे बार में ये वाली है, तो हर बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदल रही। तो ये पहली बार में हो गई, फिर चेंज पॉइंट आ गया, तो दूसरी बार में क्या आएगा, सो आगे ना RL प्लस बैक साइड, क्योंकि बैक साइड का रीडिंग है हमारे पास, सो 99.7 प्लस 1.40 प्लस 1.40, तो ये आ जाएगा 101.1, 101.1। तो ये नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब ये नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर ये माइनस करना पड़ेगा 1.70, माइनस 1.70, तो ये 99.4, तो ये हो गया 99.4, ये नया आएगा क्योंकि RL आ गया ये। अब ये RL आने के बाद में फिर से ये चेंज पॉइंट है, तो ये चेंज पॉइंट होने की वजह से इसके लिए फिर से अपने को नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। सो RL प्लस बैक साइड, तो RL प्लस बैक साइड बोलो तो बैक साइड है यहाँ पे 1.30, तो निकल गया 100.70, सो 100.70 नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। और फिर आखिरी का माइनस करेंगे 4 साइड, माइनस 1.86, तो ये 98.84, 98.84। तो इस प्रकार से आप RL भी निकल रहे, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी 3 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 जगह पे बैक साइड है, तो तीनों जगह पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग अलग आएगी। सो दैट वी हैव टू रिमेंबर इन द फ्लाई लेवलिंग। सो इन दैट वे we carry out the fly leveling work in the field. Now similarly, the another important leveling survey we have to carry out, that is profile leveling. So in the profile leveling हमको ग्राउंड का प्रोफाइल कैसा है, प्रोफाइल का मतलब क्या है कि आपके जमीन की दिखावट कैसी है। सो हाउ द ग्राउंड इज अनड्यूलिंग, और हाउ द ग्राउंड इज प्लेन, और हाउ द ग्राउंड इज स्लोपिंग, और हाउ द ग्राउंड इज हैविंग डिफरेंट ग्राउंड फीचर। तो जमीन जो है वो हमेशा तो हमारी प्लेन नहीं रहती है, तो कभी स्लोपिंग, कभी अंडुलेटिंग, कभी अलग अलग प्रकार के फीचर ग्राउंड में आ सकते हैं। तो किसी जगह पे हमको समझ लो रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए यहाँ से जाना है, मुझे 20 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो रोड बनाते समय जो ज़मीन है वो आपकी ऐसी 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 रहेगी, और उसके अलावा भी हमारा पृथ्वी का कर्वेचर भी है, तो हमारी अर्थ का स्पोरिकल शेप जो है उसके ऊपर हमको जो भी 20 किलोमीटर का रोड बनाना है समझ लो, तो 20 किलोमीटर तक के ज़मीन तो प्लेन आपको मिलने वाली नहीं है। फिर रोड के अंदर ऐसे ऐसे टर्निंग भी आएंगे, तो वो सारे जगह पे जहाँ से हमको रोड लेके जाना है
सेंटर लाइन ऑफ द रोड, दैट इज कॉल्ड एज रोड अलाइनमेंट। अब ये जो रोड अलाइनमेंट है, ये रोड अलाइनमेंट के ऊपर हमको पहले तो नीचे ऊपर होंगी जमीन, तो उसको खोद के या फिर वहां पे भर्ती भर के उसको लेवल करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग रोड बनाते हैं तो वहां पे हमको एक रोड की लेवल मेंटेन करनी पड़ती। सो यदि कोई पहाड़ी आ गई तो हो सकता है उसको हमको थोड़ा सा खोदना पड़े, या फिर रोड को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो कितना चढ़ाना ये भी मैटर है, नहीं तो वो ज़्यादा चढ़े हो जाएंगे तो उसके ऊपर गाड़ी, व्हीकल, ट्रक, लोडेड व्हीकल नहीं चढ़ पाएगा। तो हम लोग ज़्यादा चढ़ाव उतार भी नहीं रख सकते रोड के अंदर। और ऐसे लिए फिर हमको ये पता करना पड़ता है कि रोड बनाने के लिए कौन सी जगह की ज़मीन हमको खोदनी पड़ेंगी, और वो खोदी हुई मिट्टी और कहीं जगह भी जाके भरनी पड़ेंगी, तब जाके आपका रोड प्लेन बनेगा। तो ये करने के लिए हमको ये सारा काम सिविल इंजीनियर को करना पड़ता है ड्राइंग के ऊपर। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक ऑल दिस कैलकुलेशन, क्योंकि 20 किलोमीटर रोड का एस्टिमेट बनाना है। तो एस्टिमेट बनाने के लिए सबसे पहला काम रहेगा कि वो 20 किलोमीटर का ग्राउंड का सर्वे करके आओ, और उसके ऊपर से पता करो कि ज़मीन कैसी नीचे ऊपर है। फिर वो ड्राइंग के ऊपर ही फाइनल करो कि आपको कहाँ से कितना खोदना है और कितना भरना है। अब ये यदि तय हो गया और रोड की लेवल फिक्स हो गई, फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड डिसाइड हो गई आपकी, तो फिर कितना खोदना है उसकी क्वांटिटी भी निकालना पड़ेगा, और कितनी भर्ती भरना है, जहाँ पे गड्ढे गड्ढे होंगे वहाँ पे उसकी भी क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो जो भी एक्सकेवेशन हम लोग खोदेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कटिंग, अर्थवर्क इन कटिंग। और जहाँ पर भी भर्ती भरना पड़ेगा गड्ढों के अंदर, वो हो जाएगा अर्थवर्क इन फिलिंग। तो किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी रोड की चौड़ाई है, उसके साथ में जितना भी रोड की जो ज़मीन है, जहाँ से रोड जाने वाला है, वहाँ के ज़मीन का सर्वे करके हर जगह के अलग अलग पॉइंट्स के आरएल हमको निकालने पड़ते हैं। अब वो आरएल यदि निकाल लेंगे तो वो आरएल के हिसाब से हम लोग ज़मीन का क्रॉस सेक्शन कैसा है वो पता कर सकते हैं, और फिर उसका ड्राइंग शीट के ऊपर बराबर फॉर्मेशन लेवल कहाँ रहेंगी, फिर कितना खोदना पड़ेगा, कितना भरना पड़ेगा, उसकी सारी क्वांटिटीज़ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये यदि करना है तो हमारे को सबसे पहले फील्ड में जाके पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे, और अलग अलग जगह पे पॉइंट्स के आरएल नपको लेने पड़ेंगे, तब उससे हम लोग ड्राइंग निकाल सकते हैं, ग्राउंड का, ज़मीन का प्रोफाइल निकाल सकते हैं। तो ऐसे पर्पस के लिए जो सर्वे किया जा रहा है, सो टू ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ग्राउंड, टू शो द प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड, द सर्वे इज कैरिड आउट by taking the staff reading at number of points along the alignment of the road or canal or alignment railway track, whatever it is. That survey is called as profile leveling. तो इसको हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग बोल रहे हैं। सो हियर दिस टाइप ऑफ लेवलिंग इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग, क्योंकि यहाँ पे हमको ग्राउंड का एल सेक्शन कैसा है वो हमको निकालना है ड्राइंग शीट के ऊपर। So that is called as longitudinal section. So that profile leveling is also called as longitudinal sectioning. यानी लंबाई तक का हमको जमीन का क्रॉस सेक्शन कैसा है उसका ड्राइंग निकालना है कागज के ऊपर। So for that purpose, highway, railway, canal or sewage line projects, profile of the ground along with the selected route is required. हाईवे बनाना है तो जहाँ से जाएगा वो पूरे जमीन का प्रोफाइल आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा है आपको निकालना पड़ेगा रेलवे लाइन जहाँ से जा रही, तो जहाँ से रेलवे, अब रेलवे लाइन में तो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रख सकते आप, ट्रैक भी नहीं ऊंचा कर सकते और ज़्यादा ऐसा स्लोप भी नहीं कर सकते, तो लेवल रखते जाना पड़ता, रूलिंग ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ता आपको, ताकि गाड़ी के इंजन का मौसम भी ना बिगड़े और बराबर धीरे धीरे गाड़ी बराबर चलती रहे ट्रैक के ऊपर, लेवल ग्राउंड के ऊपर। तो अभी अर्थ हमारी कर्वेचर में है और उसके ऊपर भी ग्राउंड के ऊपर हमको अलग अलग ऊंची नीची पहाड़ियाँ है, कहीं पे खाई है, कहीं पे ब्रिज करना पड़ेगा आपको। ऐसा सब करके आपको देखना पड़ता है कि फॉर्मेशन लेवल आपकी रेलवे ट्रैक की थोड़ी थोड़ी ज़रा बराबर लेवल में चलती रहे। रूलिंग ग्रेडियंट वी हैव टू मेंटेन। सो उसके लिए भी आपको पहले एग्जिस्टिंग ज़मीन कैसी है जहाँ से रेलवे ट्रैक जाने वाला है उसका सर्वे करके उसके ग्राउंड का क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन निकालना पड़ता, प्रोफाइल। एंड फॉर दैट ऑल्सो वी रिक्वायर प्रोफाइल लेवलिंग। सिमिलरली कैनाल, किसी धरन से नहर निकल रही हमारी, तो नहर के अंदर पानी ग्रेविटी से बहना चाहिए, तो जो कैनाल का जो बॉटम बेड है वो बेड आपका स्लोप में चलना चाहिए बराबर बराबर।
तो आपको ज़मीन का सर्वे करके ऐसी जगह पता करनी पड़ेगी कि जहाँ पे कैनाल को बराबर थोड़ा थोड़ा स्लोप आते जाए, और जहाँ जहाँ खेत है उसके अंदर आपको कैनाल लेके जाते आना चाहिए। तो वहाँ पे भी पहले ज़मीन कैसी है और उसके हिसाब से फिर कितना खोदना और कितना भरना, ऐसा करके उसको बराबर प्लेन लेवल में आप बराबर ग्रेविटी से पानी बहेगा, इस प्रकार से कैनाल का बेड कहाँ पे रहना चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा अपने को। सो इन सच सिचुएशन ऑल्सो यू रिक्वायर द प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड। जमीन कैसी नीचे ऊपर है इसका ड्राइंग हमको लगेगा, और उसके लिए फिर से हमको वी हैव टू गो फॉर प्रोफाइल लेवलिंग। देन सीवेज लाइन, जैसा कि अभी अमरावती में सीवेज लाइन डाली हमने, तो हमारे रोड के नीचे से पाइप गए वाले गंदा पानी को सीवर लाइन में से ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो जो वेस्ट वाटर को फ्लो करने के लिए जो सीवर लाइन डाल रहे, तो उसमें भी कैसा है कि पहले एक आधे कॉलोनी में की जो सीवर लाइन है वो दूसरे बड़े सीवर लाइन में मिलेगी, फिर वो बड़ी सीवर लाइन आगे जाके दूसरे बड़े सीवर लाइन को मिलेंगी। तो जो सबसे बड़ा पाइप सीवर है वो सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर का थोड़ा सा उसके ऊपर रहेगा, फिर उसके ऊपर उसका थोड़ा सा ऊपर का रहेगा, और हमारे जो छोटे छोटे कॉलोनी में का सबसे ऊपर रहेगा। तो हर सीवर लाइन का पाइप कैसा थोड़ा थोड़ा नीचे जाने वाला एक में से, ये पूरा आपको सिटी का जो सर्वे करके कौन से रोड नीचे ऊपर है, कौन सी लाइन किधर जाएंगी क्या जाएंगी, वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जहाँ से सीवर लाइन लेके जाना है वहाँ पे ऊपर की ज़मीन कैसी है, और ऊपर की ज़मीन ऐसी चढ़ा के हो सकती इधर, और हमको नीचे लाइन नीचे डालनी पड़ सकती, तो इतना गहरा आपको खोदना पड़ेगा। तो कितना खोदना है और कितना नहीं खोदना है, तो ये सारा समझने के लिए हमको ग्राउंड का प्रोफाइल पता करना पड़ता कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड की लेवल कहाँ पर है, और उसके ऊपर ड्राइंग बना के फिर हम लोग प्लानिंग कर सकते कि एक्चुअल में प्रपोज कंस्ट्रक्शन कौन से लेवल पे करना है। तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी रिक्वायर टू कैरी आउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग सर्वे, प्रोफाइल लेवलिंग करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर आरएल निकालने पड़ेंगे। फॉर दैट पर्पज प्रोफाइल लेवलिंग इज कैरिड आउट। सो इन सच केसेस अलोंग द रूट एट रेगुलर इंटरवल द रीडिंग्स आर टेकन। ये रेगुलर इंटरवल पे रीडिंग ले रहे हैं हम लोग। फिर रेगुलर इंटरवल में कितना चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 5-5 मीटर पे रीडिंग लेना है, 10-10 मीटर पे लेना है, या 20-20 मीटर पे लेना है, या 30-30 मीटर पे लेना है, और जितना आप डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आपको पूरे रीडिंग लेने पड़ेंगे। सो इन दैट वे दिस सर्वे इज कॉल्ड एज प्रोफाइल लेवलिंग। अब ये प्रोफाइल लेवलिंग का आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। सो इन दिस फिगर यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये जो है मेरी सेंट्रल एलिमेंट है मेरी। सो एक्चुअली इन द टॉप व्यू, मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ अभी मुझे यहाँ से लेके ये मेरे रोड के सेंटर लाइन है ऐसी सीधी, और ये लाइन के ऊपर मुझे सर्वे करते जाना है। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 20-20 मीटर पे, 30-30 मीटर पे, या 10-10 मीटर पे, जितना आपको चाहिए ऐसे मैं पॉइंट्स पहले मार्क करूंगा। तो सबसे पहले मुझे रेंजिंग करके ये लाइन को फिक्स करना पड़ेगा, और रेंजिंग करने के बाद में उसके ऊपर चेन सर्वे से या टेप से गिन के 10-10 या 15-15 20-20 मीटर के ऊपर मुझे पेग ठोकने पड़ेंगे। तो मेरी ये सेंट्रल अलाइनमेंट लाइन मार्क हो गई, मेरी पेग लगा दिया मैंने वहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे मुझे रीडिंग लेना है। तो रीडिंग लेते समय मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, तो मैं यहाँ पे से जहाँ से मुझे मैक्सिमम रीडिंग कवर होते, तो मैं यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट रखूँगा। ये हो जाएगा मेरा लेवलिंग स्टेशन 1। सो लेवल इंस्ट्रूमेंट ऑटो लेवल मेरी यहाँ रहने वाली है, और यहाँ पे रखने के बाद में अब मुझे सर्वे शुरू करना है। तो सबसे पहले तो मुझे कोई तो भी बेंच मार्क पे रीडिंग लेना पड़ेगा। तो जो भी आसपास में जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा करीब करीब परमानेंट है समझ लो, उतने सर्वे के लिए तो बदलने वाला नहीं है, ऐसे जगह पे मुझे बैक साइड का रीडिंग लेना पड़ेगा, या बेंच मार्क बोलूँगा मैं उसको। सो ऑन ए रिलेटिवली टेम्पररी स्ट्रक्चर आई विल टेक द बैक साइड रीडिंग। ये बैक साइड का रीडिंग मैं यहाँ लूँगा, और ये पॉइंट को मैं बोलूँगा दिस इज माई बेंच मार्क, टेम्पररी बेंच मार्क हो जाएगा मेरा ये। तो ये बेंच मार्क एज्यूम करके यहाँ पे मैं सबसे पहला रीडिंग लूँगा बैक साइड का, और ये रीडिंग लिया कि फिर मुझे स्टॉप रखना है नंबर 1 के पॉइंट पे, और यहाँ पे लेना है इंटरमीडिएट साइड आएंगी फिर, अब ये क्योंकि आखिरी का रीडिंग तो नहीं है। फिर दूसरे पॉइंट पे भी रीडिंग लेंगे तो ये भी इंटरमीडिएट साइड आ जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट पे रीडिंग लेंगे स्टॉप रख के, फिर चौथे पे लेंगे तो ये भी आ गया मेरा इंटरमीडिएट साइड का रीडिंग। और अब मुझे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है, क्योंकि इसके बाद के रीडिंग मुझे आगे लेके जाना है सर्वे को। तो मैं यहाँ से और एक पॉइंट पे ले लूँगा, और इसको बोलूँगा मैं चेंज पॉइंट 1 CP1, चेंज पॉइंट
पे यहाँ पर रीडिंग ले लूँगा मैं 4 साइड का। सो आखिरी का रीडिंग मेरा 4 साइड का हो गया और बीच में मैंने इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग ले ली। फिर मैं ये इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये हो गया इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 2। अब L2 से रीडिंग शुरू करने के पहले सबसे पहले मुझे जो 4 साइड का रीडिंग था मेरा चेंज पॉइंट का, उसके ऊपर डबल रीडिंग लेना पड़ेगा। तो उसी रीडिंग पे मेरा बैक साइड का रीडिंग आएगा चेंज पॉइंट के ऊपर। और फिर यहाँ पे मेरा आएगा फिर से इंटरमीडिएट साइड, फिर 6वें पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड, फिर 7वें पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड, फिर 8वें पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड, और अब मुझे आखिरी का 9वें पॉइंट पे भी मैं इंटरमीडिएट साइड ले लूँगा। और फिर मुझे इंस्ट्रूमेंट यदि शिफ्ट करना है तो मैं कोई तो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लूँगा, उसको मैं बोलूँगा CP2 चेंज पॉइंट 2, और यहाँ पे जो रीडिंग लूँगा वो हो जाएगा मेरा 4 साइड का रीडिंग। यानी आखिरी का रीडिंग लिया मैंने यहाँ से L2 पे से, आखिरी का रीडिंग मेरा ये वाला है। फिर मैं इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करूँगा तो ये इंस्ट्रूमेंट आ गया मेरा यहाँ पे। अब मुझे सर्वे चालू करना है फिर से, तो सर्वे चालू करने के लिए मेरे को चेंज पॉइंट पे डबल से रीडिंग लेना पड़ेगा। तो ये जब रीडिंग लूँगा मैं तो ये रीडिंग हो जाएगा मेरा बैक साइड का चेंज पॉइंट के ऊपर। फिर आगे का रीडिंग मैं 10 नंबर के पॉइंट पे लूँगा, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड। फिर 11 नंबर पे इंटरमीडिएट साइड, फिर 12 नंबर पे इंटरमीडिएट साइड, फिर 13 नंबर पे इंटरमीडिएट साइड, और ऐसा आगे कंटिन्यू करना है। तो और आखिरी का रीडिंग आप किसी पॉइंट के ऊपर छोड़ सकते, तो ये हो जाएगा मेरा 4 साइड का रीडिंग, आखिरी वाला रीडिंग। तो इसको मैं टेम्परेरी बेंचमार्क बोल सकता हूँ अगले दिन के लिए टेम्परेरी बेंचमार्क हो जाएगा मेरा। तो इस प्रकार से यदि रोड की सेंटर लाइन हमको मालूम है, या कैनाल की सेंटर लाइन हमको मालूम है, या फिर सीवर लाइन की सेंटर लाइन हमको मालूम है, या रेलवे लाइन की सेंटर लाइन हमको मालूम है, तो ये हो गई सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट पे 20-20 मीटर पे या 10-10 मीटर पे जो भी है इंटरवल पे पॉइंट लेके रख लिया हमने। और फिर इंस्ट्रूमेंट कहीं तो भी ऐसे जगह पे रखने का जहाँ से मैक्सिमम पॉइंट कवर होंगे। फिर चेंज पॉइंट छोड़ने के लिए एक आखिरी का पॉइंट छोड़ने का, जहाँ पे आपको 4 साइड का रीडिंग और बैक साइड का रीडिंग दोनों लेने पड़ेंगे। और फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करो आप। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे तो आखिरी का रीडिंग 4 साइड या बैक साइड पे जब रहेगा वो चेंज पॉइंट रहेगा। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इन दैट फैशन हमको कंटिन्यूअस 2, 4, 5, 10, 15 किलोमीटर कितना सर्वे करना है, ऐसा आपको करते जाना पड़ेगा। आपका इसका पर्पस क्या है कि कंटिन्यूअस इंटरवल पे जो पॉइंट है इन सब का RL हमको कैलकुलेट करना है। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द RL ऑफ द पॉइंट्स एट द गिवन कांस्टेंट इंटरवल। सो ऐसा जब सर्वे करेंगे हम लोग तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल लेवलिंग। सो इन दैट फैशन वी हैव टू कैरी आउट द प्रोफाइल लेवलिंग सर्वे। अब ये प्रोफाइल लेवलिंग सर्वे जब जैसा मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया, सो हियर द सेक्शन ऑफ द रूट इज ड्रॉन टू गेट द प्रोफाइल। तो एक्चुअली हमको यहाँ से जो रीडिंग निकलेंगे ना, उससे हमको ग्राउंड का ये जो ऐसा यहाँ पे जो दिख रहा है हमको ग्राउंड ऐसा, ये इसका डायग्राम हमको निकालना है, ये निकालना है हमको। एक्चुअली हमने अभी इमेजिनरी करके लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसको कैसा निकालेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा पर्पज़ है ये जो ग्राउंड का प्रोफाइल है इसको ड्रा करना कागज़ के ऊपर। और उसके लिए हमको हर एक जो पॉइंट है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पॉइंट जो लिए हमने, इसके सबके हमको क्या चाहिए, RL चाहिए। अब ये RL निकालने के लिए हमने ये वाली अरेंजमेंट इस प्रकार से सर्वे किया। सो हियर फॉर द ड्राइंग ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द रूट, वर्टिकल स्केल इज यूजुअली लार्जर as compared to the horizontal distance and it gives the clear picture of the profile of the route। तो हम लोग अभी ये देखने वाले हैं कि इस प्रकार का ग्राउंड का प्रोफाइल कैसे निकालना। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, तो मैंने यहाँ पर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा यहाँ पे, और एक रीडिंग लिया मैंने बैक साइड के ऊपर। सो बैक साइड का बेंचमार्क हो गया मेरा यहाँ पे। और फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ से रीडिंग ले ली है। तो ये सारे मेरे हो गए इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग। और आखिरी का रीडिंग मैंने 4 साइड का लिया, वो लिया मैंने हमारा चेंज पॉइंट पे। इसी चेंज पॉइंट पे फिर मैंने इसके बाद में मैंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया L2 पे। तो ये L2 पे मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होने के बाद में फिर से बैक साइड का रीडिंग मुझे वही जगह पे लेना पड़ेगा जहाँ पे मैंने चेंज पॉइंट छोड़ा था। फिर 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे पॉइंट पे मैं इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग लूँगा। यहाँ पर भी ये सारे इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग हो गए। पहला रीडिंग अपना बैक साइड का था, बाद के सारे इंटरमीडिएट, और ये आखिरी का 4 साइड का। अब जहाँ 4 साइड लिया वहीं पे मैंने बैक साइड भी लिया क्योंकि ये चेंज पॉइंट है मेरा। फिर आगे के सारे पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड लिया, फिर आखिरी में मुझे और एक चेंज पॉइंट लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मेरा चेंज पॉइंट पे रीडिंग आ जाएगा 4 साइड का। फिर ये इंस्ट्रूमेंट मैं आगे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट आ गया मेरा, और यहाँ से फिर उसी पॉइंट पे रीडिंग लूंगा, क्योंकि मेरा ये चेंज पॉइंट 2 है तो यहाँ पे डबल रीडिंग आ जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा बैक साइड का। और फिर आगे के सारे जो पॉइंट है वहाँ पे इंटरमीडिएट साइड लेंगे, और सबसे आखिरी का पॉइंट फिर से टर्निंग पॉइंट चेंज पॉइंट पे छोड़ेंगे हम लोग, वो हो जाएगा 4 साइड का रीडिंग। तो इस प्रकार से यदि जब हम लोग सर्वे करते जा रहे तो हमको हर एक जगह का स्टाफ रीडिंग हमको मालूम है, स्टाफ रीडिंग एट एवरी स्टेशन वी आर कैलकुलेटेड। अब वो स्टाफ रीडिंग को हमको पेज ऑफ फील्ड बुक में भरना पड़ेगा। तो पेज ऑफ फील्ड बुक में भरने के लिए कैसे भरेंगे हम लोग, दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर। तो इस प्रकार से आपको लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग की डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। सो एज यू नो दैट ये जो पेज ऑफ फील्ड बुक है इसके अंदर हमारा जो पहला कॉलम है वो है स्टेशन, फिर दूसरा है चेनेज और डिस्टेंस, ये चेनेज आ गया, फिर रीडिंग आ गया हमारा यहाँ पर बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड और फिर 4 साइड, फिर उसके बाद में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ये आरएल, और उसके बाद में रिमार्क। ऐसा करके आ जाएगा हमारा ये टेबल। अब प्रोफाइल लेवलिंग में जब शुरू किए थे तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा बेंचमार्क, तो स्टेशन में आ जाएगा बेंचमार्क। आखिरी में यहाँ पर भी बेंचमार्क लिखना पड़ेगा अपने को, और इसका आरएल यदि आपको मालूम है तो वो आरएल कितना मालूम है वो लिख लो यहाँ पे। तो आरएल इज ऑल्सो नोन, तो ये आरएल हमको पहला वाला आरएल एज्यूम करना पड़ेगा, या दिया होगा तो वो लेना पड़ेगा बेंचमार्क का। और उसके ऊपर जो बैक साइड का रीडिंग लेंगे वो बैक साइड का रीडिंग आप यहाँ लिख देंगे। सो दैट इज 2.045, ये बैक साइड में रीडिंग आ गया। पहला रीडिंग हमारा बैक साइड में रहेगा। फिर आपका पहला पॉइंट है 0 वाला, यानी जहाँ से आपने सर्वे चालू किया था तो जो अलाइनमेंट है उसके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट लिए थे आपने। तो पहला रीडिंग का डिस्टेंस आ जाएगा 0 मीटर, यानी ये पहला पॉइंट, और वहाँ पर इंटरमीडिएट साइड का रीडिंग आएगा। इस प्रकार से फिर दूसरा रीडिंग, दूसरा डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट है 10 मीटर पे, तो दूसरे पॉइंट के ऊपर 10 मीटर के ऊपर फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर तीसरे पॉइंट के ऊपर 10 मीटर के आगे यानी 20 मीटर पे जाएगा, उसके आगे का इंटरमीडिएट पॉइंट। फिर चौथा जो पॉइंट है वो फिर 35 मीटर पे लिया आपने, फॉर एग्जांपल ये वो डिस्टेंस लिया होगा आपने, तो वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और फिर इंटरमीडिएट साइड। फिर आपने क्या किया कि अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है तो आपने 4 साइड का रीडिंग लिया, तो वो वहाँ पे आ गया 4 साइड का रीडिंग। अब ये 4 साइड पे रीडिंग आपने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक का लेके रीडिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, तो आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद में यहाँ पे जो जहाँ पे 4 साइड लिया था ये हो जाएगा आपका चेंज पॉइंट 1। अब चेंज पॉइंट 1 के ऊपर आपको फिर से बैक साइड लेना पड़ेगा जब इंस्ट्रूमेंट नई जगह पर रखेंगे आप। तो जब इंस्ट्रूमेंट नई जगह पर रखेंगे तो आपका रीडिंग आ जाएगा बैक साइड में, यानी एक जगह पे 2 रीडिंग आ गए, और ये आपका चेंज पॉइंट हो गया, रिमेंबर। अब इसके अंदर आपने डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट लिया आपने ये चेंज पॉइंट। फिर चौथे के बाद में 5वां पॉइंट है, तो 5वें पॉइंट का चेंज डिस्टेंस लिखो यहाँ पे, और उसके ऊपर रीडिंग आएगा इंटरमीडिएट साइड में। फिर 6वें पॉइंट का आएगा इंटरमीडिएट साइड में रीडिंग, फिर 7वें का आएगा इंटरमीडिएट साइड में, फिर 8वें का आएगा इंटरमीडिएट साइड में, फिर 9वें का आएगा इंटरमीडिएट साइड में, और फिर आखिरी में आपने और एक पॉइंट लिया, आखिरी का पॉइंट जो आएगा 4 साइड में। तो ये 4 साइड था। अब इसके आगे का रीडिंग दिख नहीं रहा आपको, तो यहाँ पे 4 साइड खत्म हो गई यहाँ पे। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जहाँ पे 4 साइड लिया उसको बनाना पड़ेगा चेंज पॉइंट 2, ये चेंज पॉइंट 2 हो गया। अब चेंज पॉइंट 2 है, इसका मतलब वहाँ पे बैक साइड फिर से लेना पड़ता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके नई जगह पे रखेंगे तो उसी पॉइंट पे रीडिंग लेना है, यानी एक पॉइंट पे 2 रीडिंग आ जाएंगे, तो ये बैक साइड का रीडिंग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा चेंज पॉइंट 2 है, TP2। फिर यहाँ पे बैक साइड हो गई कि फिर आगे का पॉइंट 10वें नंबर का पॉइंट है, उसके ऊपर इंटरमीडिएट साइड आए, 11 नंबर पे फिर इंटरमीडिएट साइड लो, फिर 12 नंबर पे इंटरमीडिएट साइड लो, फिर 13 नंबर पे इंटरमीडिएट साइड लो, और फिर आपको सर्वे एंड करना है तो आखिरी का एक पॉइंट ले लो, छोड़ दो उसको, वहाँ पे आ जाएगा 4 साइड। तो इस प्रकार से बैक साइड, फिर बाकी सारे इंटरमीडिएट साइड में, आखिरी का रीडिंग 4 साइड में, फिर उसको चेंज पॉइंट बना के फिर से बैक साइड में शुरू करो, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर आखिरी का रीडिंग 4 साइड पे, फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया तो उसी पे बैक साइड लेना पड़ेगा, फिर इंटरमीडिएट साइड और आखिरी का 4 साइड। तो इस प्रकार से हम लोग फील्ड बुक में प्रोफाइल लेवलिंग की डाटा एंट्री करेंगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब ये एंट्री आपको कंटिन्यूअस करते जानी है, 2, 4, 5 किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस करते जाएंगे ना उतने किलोमीटर के लिए कंटिन्यूअस रहेगा। अब ऐसा जब हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पर फिर जहाँ पर बेंचमार्क है वहाँ पे RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते।
और ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो ये आर एल निकलेगा, फिर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगला इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो ये आर एल निकलेगा। तो हर बार इंटरमीडिएट साइड माइनस करते जाओ तो आपको ये सारे आर एल मिलेंगे। फिर ये आर एल यहाँ तक खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपका 2.86 माइनस करके ये आ गया, लेकिन यहाँ पे चेंज पॉइंट है, तो जहाँ पर चेंज पॉइंट है वहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदलती है, ये हमको फिर से याद रखना पड़ेगा। तो ये आर एल प्लस बैक साइड का रीडिंग दिया है हमको यहाँ पे, उसको ऐड कर देंगे तो नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगी। फिर ये नए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर से आप इंटरमीडिएट साइड का रीडिंग माइनस करते जाओ, इसमें से ये माइनस करो तो ये आएगा, 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 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा। फिर से यहाँ तक आपके आर एल निकल गए। फिर यहाँ पे चेंज पॉइंट आ गया तो नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी पड़ेगी। सो आर एल प्लस बैक साइड न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। फिर वहाँ से इंटरमीडिएट साइड माइनस करते करते ये आर एल आ जाएंगे सारे आपके, और आखिरी का आर एल आपको ये 4 साइड माइनस करके आने वाला है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोफाइल लेवलिंग का कैलकुलेशन, इस प्रकार से करना पड़ता है। नाउ इन दिस हमको सब पॉइंट के आर एल मिल गए, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। अभी आर एल हमारा पर्पस था ये सारे पॉइंट के आर एल निकालने, जो हमने 10-10 मीटर पे जो पॉइंट ले वाले हैं उसके आर एल निकालना। तो ये आर एल निकल गए हमारे। अब इसको आपको चेक करना है तो लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल ये निकाल लो आप, और यहाँ पे समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड तो ये निकाल लो, और ये दोनों सरी के आ रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों सरी के मतलब आपका कैलकुलेशन बराबर है। ये आपने चेक कर लिया। इस प्रकार का प्रोसीजर आपको फील्ड बुक में करना पड़ेगा प्रोफाइल लेवलिंग के लिए। अब ऐसा यदि कर लेते हैं तो इससे हमको ड्राइंग कैसे बनाना है, तो हमारे पास में अभी क्या है, आर एल की वैल्यू है। तो आर एल की वैल्यू लेने के लिए अपने को इस प्रकार से प्रोफाइल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा सीधा सीधा पहले तो एक लाइन निकालेंगे सीधी वाली। सो दिस स्ट्रेट लाइन वी विल ड्रॉ फर्स्ट, और ये लाइन के ऊपर हम लोग एक स्केल ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल। वो हॉरिजॉन्टल स्केल हो जाएंगी हमारी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी 10 मीटर डिस्टेंस के लिए 1 सेंटीमीटर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 मीटर है तो 10 मीटर बने, 1 सेंटीमीटर के ऊपर 10 मीटर आ जाएगा मेरा, 2 सेंटीमीटर के ऊपर 20 मीटर, 3 सेंटीमीटर के ऊपर 30 मीटर। इस प्रकार से मुझे ये सारे पॉइंट जो है जहाँ पे मैंने रीडिंग लिया, जो भी डिस्टेंस आपने लिया होगा, जहाँ पे जितना लिया होगा, ये सारे पॉइंट मुझे ये नीचे के लाइन पे मार्क करना है। सो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसा आपने 10-10 मीटर पे पॉइंट लिए तो 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे मार्किंग लग जाएंगे आपके। तो ये अब ये लाइन निकलने के बाद में यहाँ पे हमको आर एल लिखना है। तो ये हो गया हमारा एक्चुअली डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस, यानी ये चेंज हो गया आपका सेंटर लाइन का। अब इसके ऊपर आपने को लिखना है आर एल की वैल्यू। तो ये आर एल आपने फील्ड बुक में कैलकुलेट किए वाले हैं, पिछले पेज में मैंने आपको दिखाया। वो आर एल आपको यहाँ पे सबको लिखना है, इस प्रकार से लिख दिया मैंने यहाँ पे 209.82, 209.64, फिर 210.380, 209.532, 207.835, 207.740, ऐसे सब पॉइंट के आर एल आपको यहाँ पे लिख देना है। सो दिस इज मेन इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको ऐसे आड़े ही लिखना है, क्योंकि आपको ड्राइंग शीट में लंबा ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे सब। तो हर एक मार्किंग के ऊपर ऐसे आड़े इस प्रकार से 209.82 जो भी आर एल आपका फील्ड बुक में कैलकुलेट किया वो आप यहाँ पर लिख लो। सो ये सारे आर एल आपने यहाँ लिख लिए। फिर उसके ऊपर और एक लाइन बनाना है आपको ये आर एल लिखने के बाद में। अब ये लाइन बनाया आपने, तो ये लाइन को हम लोग बोलेंगे डेटम। अब ये डेटम मतलब हमारा रेफरेंस सरफेस। अब डेटम हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आपके आर एल देखो यहाँ पे 209, 209, 210, 209, 207, 207, 208, 208, 208, 208 सब ऐसे आर एल है। सबसे कम वाला मेरा यहाँ पे है 207 वाला। तो 207 से थोड़ी कम वैल्यू हमको डेटम करके चूज करनी पड़ेगी। तो 207 से कम वाली वैल्यू मैं 200 ले सकता हूँ, 200 या फिर 205 ले सकता हूँ। तो एल सेक्शन निकालने के लिए हमको डेटम कैसा करना पड़ेगा, जो सबसे कम वाला आर एल आ गया उससे थोड़ा नीचे कोई भी एक 5 मीटर के मल्टीपल वाली या 100 मीटर के मल्टीपल वाली ऐसी वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे कम वाला आर एल है हमारा 207। तो मैं यहाँ पर 200 या फिर 205 ये आर एल मैं डेटम ले सकता हूँ मीटर।
तो मैं यहाँ पर 205 का डेटम ले रहा हूँ। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है, सपोज ये लाइन मेरी 205 मीटर की हाइट के ऊपर है, यानी मीन सी लेवल से ये लाइन की ऊंचाई 205 है, ऐसा मान के चलो। आप इमेजिन करो कि ये लाइन 205 मीटर के ऊपर है। तो फिर मुझे मेरा आरएल यहाँ पे दिया है 209.82, तो 209.82 में से 205 निकाल दो तो कितना बचेगा। सो आई विल हियर 209.82 माइनस 205, क्योंकि 205 मेरा डेटम है तो मेरे पास आ गया 4.82। तो मैं 4.82 की यहाँ पर लाइन बनाऊंगा, ये वाली, ये लाइन मैं बनाऊंगा 4.82 की। तो ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। तो मैंने वर्टिकल स्केल यहाँ पर क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी 4.82 मीटर इज इक्वल टू 4.82 सेंटीमीटर। तो मैं ये 4.82 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा वर्टिकल वाली ऐसी। तो ये एक लाइन बन गई मेरी। फिर दूसरा आरएल है 209.64, फिर 205 माइनस करूंगा उसमें से, क्योंकि डेटम मेरा 205 का है, यानी यहाँ तक 205 हो गया। तो इसके ऊपर कितना बच रहा है मेरा 4.64, तो मैं ये वाली लाइन बनाऊंगा 4.64 की। तो यहाँ तक आ जाएंगी। फिर 210.38 में से 205 माइनस करूंगा डेटम, तो फिर जो भी डिस्टेंस आएगा वो यहाँ पर मार्क करूंगा। इस प्रकार से मुझे हर एक पॉइंट के आरएल में से डेटम माइनस करके जितना भी डिस्टेंस आएगा उतने सेंटीमीटर की लाइन मुझे यहाँ पे बनाना है। हर जगह पे मैं कैलकुलेशन करूंगा और उतने सेंटीमीटर की लाइन मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो इस प्रकार से मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन बना ली, जिसकी स्केल है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आरएल मेरा 210 है और 205 डेटम है, तो 5 मीटर आ गया। तो 5 मीटर के लिए मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई यहाँ पर। इस प्रकार से मैं लाइन बना लेता हूँ। तो मेरे ये जो पॉइंट है ये मेरे ग्राउंड के पॉइंट हो गए मेरे, जिसका आरएल मैंने कैलकुलेट किया वो इतना है, ये वाले। तो ये सारे पॉइंट मुझे यहाँ पर ये लाइन के टॉप के अंदर मिल जाएंगे। और फिर मुझे क्या करना है, तो इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ऐसा इसको थोड़ा थिक लाइन से ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो थिक लाइन से ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे फिर ऐसा ये थिक लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा हर एक पॉइंट को। सो ये पॉइंट ये ऐसा, ये और ये। तो ये जो शेप बन गया मेरा, यानी मेरी जमीन ऐसी है, अभी ये मुझे पता चल गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ड्राइंग के अंदर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रोफाइल लेवलिंग किया, हर एक 10-10 मीटर के ऊपर पॉइंट के स्टाफ रीडिंग लिए, स्टाफ रीडिंग को फील्ड बुक में पेज पे भरा और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आरएल कैलकुलेट किए। फिर आरएल के लिए यहाँ पे ड्राइंग बनाने के लिए पॉइंट मार्क किए लाइन के ऊपर, फिर आरएल लिख दिए उसके ऊपर सब। फिर डेटम को सिलेक्ट किया 205 मीटर और फिर 205 को माइनस किया हर एक आरएल में से, तो जितना बचेगा उतनी सेंटीमीटर की लाइन निकाली। तो ये वर्टिकल लाइन मिल गई मुझे और उसके टॉप के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके जमीन का शेप कैसा है वो आपको पता चल गया। सो एक्चुअली दिस इज आवर प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड। सो दिस इज आवर प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड। तो प्रोफाइल सर्वे करने के बाद में इस प्रकार से हमको एक ड्राइंग शीट बनानी होती है। अब ये हो गया मेरा जनरल, मैं इसके आगे का अपना पार्ट नहीं है सर्वे का, बट यू शुड नो दैट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर यदि मुझे रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं एक ऐसी लाइन ढूंढूंगा कि ये यदि मैं यहाँ से यदि को ऐसा करता हूँ, अभी देखो यहाँ से ऐसा, तो ऐसा करने से क्या है, यहाँ की मिट्टी मैं खोदूंगा और यहाँ पे मैं उसको भर दूंगा, फिर यहाँ से उसको खोदूंगा और इधर भर दूंगा। इस प्रकार से मैं कटिंग, ये वाला कटिंग है और ये वाला फिलिंग है, ये वाला कटिंग है, ये वाला फिलिंग है। तो आप ये फॉर्मेशन लेवल डिसाइड कर सकते हो ये प्रोफाइल लेवलिंग पे, और कटिंग और फिलिंग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और जब रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, तो हमारा मेन पर्पस होता है कि कटिंग की क्वांटिटी और फिलिंग की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ताकि कहीं से अलग से मटेरियल हमको लाने का काम ना पड़े। सो फॉर दैट पर्पज हमको पहले ड्राइंग का क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ता है, एल सेक्शन, और एल सेक्शन के लिए हमको प्रोफाइल लेवलिंग का सर्वे करना होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोफाइल लेवलिंग। सो हियर नाउ द लास्ट पार्ट इनटू दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्रॉस सेक्शनिंग। तो अब यदि मेरा इस प्रकार से मैं रोड का काम करता हूँ,
तो मुझे रोड के इसमें एक ही जगह का प्रोफाइल तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि रोड मेरा समझ लो 12 मीटर चौड़ा है, तो हो सकता है ज़मीन को ऐसा भी स्लोप होगा या ग्राउंड नीचे पर होगा, तो ज़्यादा चौड़ाई वाली ज़मीन रोड के लिए, हाईवे के लिए बहुत चौड़ाई की ज़मीन लगती है, तो सिर्फ सेंटर लाइन के ऊपर प्रोफाइल लेवलिंग करने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़मीन सेंटर लाइन पे कैसी है उसका मतलब नहीं है, लेकिन उसके आजू बाजू में यदि नीचे ऊपर है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो रोड के लिए जितनी चौड़ाई है उतने चौड़ाई का सर्वे हमको करना पड़ेगा एक्चुअल में। तो इसीलिए प्रोफाइल लेवलिंग के साथ में एडिशनल क्रॉस सेक्शनिंग का भी सर्वे किया जाता है। तो ये क्रॉस सेक्शनिंग का सर्वे कैसा करते हैं हम लोग, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर। सो इन मेनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली द लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल बट ऑल्सो द प्रोफाइल ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट रेगुलर इंटरवल इज रिक्वायर। दिस प्रोफाइल हेल्प इन कैलकुलेटिंग द अर्थवर्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। तो सिर्फ सेंटर लाइन पे प्रोफाइल लेने से होगा नहीं, तो उसके आजू बाजू की ज़मीन नीचे ऊपर होंगी तो वहाँ उसके वजह से भी अर्थवर्क में फ़र्क पड़ेगा। तो हमको रोड के क्रॉस सेक्शन में भी ज़मीन कैसी नीचे ऊपर है वो भी पता करना पड़ेगा। सो एट जैसा भी हमने प्रोफाइल लेवलिंग में 10-10 मीटर पे पॉइंट लिए, तो हर 10 मीटर पे क्रॉस सेक्शन में ज़मीन कैसी है, ज़मीन का प्रोफाइल वो भी मुझे पता करना होता है। सो फॉर दैट पर्पज रीडिंग एट 20 मीटर इंटरवल अलॉन्ग द चेन लाइन एंड द क्रॉस रीडिंग इज टेकन एट 3 मीटर इंटरवल ऑन द आइदर साइड। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर मेरा ये मेरी एल सेक्शन की लाइन है यहाँ तक, फिर यहाँ पर भी ये भी मेरी एल सेक्शन है, यानी ये मेरी रोड की अलाइनमेंट हो गई। अब यहाँ तो मैंने 10-10 मीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पॉइंट लेके 10-10 मीटर पे मैंने रीडिंग ले लिया, तो वो तो प्रोफाइल निकाल लिया आपने, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना भाई, आप सर्वे ये डायरेक्शन से कर रहे तो उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3-3 मीटर पे पॉइंट लेना है, और तो इधर 3 मीटर पे, इधर 3-3 मीटर पे। सो 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9, फिर यहाँ से 3 6 9 3 6 9 3 6 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9। तो सेंट्रल लाइन के लेफ्ट साइड में 3 मीटर 6 मीटर 9 मीटर पे 3 पॉइंट लिया मैंने, और राइट साइड में भी 3 मीटर 6 मीटर 9 मीटर पे पॉइंट लिया। तो रोड के सेंटर लाइन के अलावा लेफ्ट साइड में 3 पॉइंट और राइट साइड में 3 पॉइंट, यानी 9 मीटर इधर का और 9 मीटर इधर का, 18 मीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया। और ऐसे 18 मीटर का डिस्टेंस को कवर करते करते मुझे सर्वे करते जाना है। तो मुझे सिर्फ सेंटर लाइन के ऊपर ही रीडिंग नहीं लेना है स्टाफ के, तो ये बाजू के जो पॉइंट है 3 6 9 मीटर पे, इस पे भी रीडिंग लेना पड़ेगा। और तब जाके हम लोग पूरे रोड का प्रोफाइल जो है, ग्राउंड का प्रोफाइल जो है रोड सर्वे का, रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो पता कर पाएंगे। इसलिए प्रोफाइल लेवलिंग के साथ में हर एक लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में 3-3 मीटर पे या जो भी रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे पॉइंट लेके उसके ऊपर भी रीडिंग लेना स्टाफ के, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनिंग। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनिंग। सो हियर द डिस्टेंस ऑन द क्रॉस सेक्शन आर ट्रीटेड एज द लेफ्ट और राइट to the line they are found while facing the forward station, and the cross sectional length depend upon the nature of the project. अब 24 मीटर का रोड है तो मुझे 6 12 18 और या इधर 6 और 12 इधर 6 और 12 या 3 6 9 12, तो इधर 12 मीटर इधर 12 मीटर, 24 मीटर का रोड कवर कर सकते। तो कैनाल होगा तो कम करना पड़ेगा आपको। तो जैसा रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की उसके हिसाब से लेफ्ट साइड में कितने पॉइंट और राइट साइड में कितने पॉइंट लेना है ये हमारे पे डिपेंड करता है। सो उसके हिसाब से हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। और फिर ग्राउंड के ऊपर इस प्रकार से परपेंडिकुलर लाइन सेट करना पड़ेगा ऐसी। अब ये परपेंडिकुलर लाइन सेट करने के लिए जो सेंटर अलाइनमेंट है इसके लिए आप रेंजिंग करेंगे, रेंजिंग करके 10 20 30 40 50 60 मीटर पे पेग लगाएंगे, और फिर क्रॉस टाप का इस्तेमाल करके ये परपेंडिकुलर लाइन सेट करना पड़ेगा आपको। ये वाली परपेंडिकुलर लाइन सेट करना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर फिर 3 6 9 मीटर पे फिर से पेग या एरो फिक्स करने पड़ेंगे, या चूना पाउडर डालना पड़ेगा, या पत्थर को सफ़ेद कलर मार के रखना पड़ेगा, या फिर एरो लगाने पड़ेंगे। तो आपको इस प्रकार से मार्किंग करने पड़ेंगे। सो इन दैट वे दिस पॉइंट्स आर मार्क इन द फील्ड। ये पूरे पॉइंट आप मार्क कर देंगे ग्राउंड के ऊपर, और फिर हमको आगे वहाँ पे जाके सर्वे करना पड़ेगा। सो ऑन दिस अलाइनमेंट
सो क्रॉस सेक्शन एट रेगुलर इंटरवल हमने मार्क कर लिए और फिर हर एक जगह पे रीडिंग लेना है आपको, जो 3-6 मीटर पे पॉइंट लिए अपने वहाँ पे। एंड ये जो क्रॉस सेक्शन में है, तो मैं अभी क्या करूँगा, फिर ये मेरा टॉप व्यू है, तो ये सेंटर लाइन जो होगी मेरी, ये सेंटर लाइन के ऊपर यहाँ तो रीडिंग लेने वाला हूँ मैं, ये मेरे प्रोफाइल के लिए हो गए। लेकिन क्रॉस सेक्शन के लिए ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 पॉइंट और राइट साइड में 3 पॉइंट है, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट यहाँ तो कहीं तो भी रखना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट लेवल 1। और यहाँ से ये यहाँ पहला रीडिंग आ जाएगा बैक साइड में, ये वाला, ये बैक साइड का रीडिंग, ये बैक साइड का रीडिंग हो जाएगा बेंच मार्क के ऊपर। और फिर पहला रीडिंग ये सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर 0 मीटर पे, फिर दूसरा रीडिंग लेफ्ट साइड पे, राइट पे, इस पे, फिर इस पे लेफ्ट राइट साइड पे। तो हर लाइन के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर 3 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट इधर और एक सेंटर का पॉइंट, 7 रीडिंग लेना है आपको यहाँ से। फिर 7 रीडिंग यहाँ पे लेंगे, फिर 7 रीडिंग यहाँ लेंगे, फिर 7 रीडिंग यहाँ लेंगे, इधर भी ऐसा, यहाँ पे 7 रीडिंग लेंगे। फिर यहाँ की इंस्ट्रूमेंट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर चेंज पॉइंट लेके फिर 7 रीडिंग, 7 रीडिंग, 7 रीडिंग, 7 रीडिंग, ऐसा सर्वे हमको करते जाना पड़ता। तो ये कंबाइन हो जाएगा हमारा प्रोफाइल लेवलिंग प्लस क्रॉस सेक्शनिंग, दोनों भी हो जाएंगे। अब यह इस प्रकार से यदि हम लोग करते हैं तो आपको फिर से क्या होगा कि हमारे पास में ऑब्जर्वेशन आएंगे, और जो ऑब्जर्वेशन हमारे प्रोफाइल लेवलिंग के क्रॉस सेक्शनिंग के लिए होंगे। तो यहाँ पर रीडिंग भरते समय आपको फिर से ध्यान में रखना है कि पहला पॉइंट रहेगा आपका बेंच मार्क, फर्स्ट इज बेंच मार्क, इसका आरएल हमको मालूम है 100 मीटर, और ये हो जाएगा बेंच मार्क। और उसके ऊपर बैक साइड का रीडिंग यहाँ ले लेंगे हम लोग, 1.325 आ गया। फिर पहला रीडिंग रहेगा हमारा सेंटर का। अब ये डिस्टेंस के कॉलम में मैंने लेफ्ट, सेंटर और राइट ऐसे ऑप्शन कर दिया, ये डिस्टेंस वाले कॉलम में। तो 0 मीटर का जो रीडिंग है वो सेंटर का रीडिंग है, फिर 20 मीटर का रीडिंग है, फिर 40 मीटर का रीडिंग है। तो ऐसे सेंटर के रीडिंग जो है हमारे वो प्रोफाइल लेवलिंग की रीडिंग है, 0, 20, 40, 60 ऐसा, या 0, 10, 20, 30, 40। और 0 के बाद में पहला रीडिंग 3 मीटर पे है, 6 मीटर पे, 9 मीटर पे लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद का रीडिंग जो है वो राइट साइड में 3 मीटर पे, 6 मीटर पे और 9 मीटर पे, जो भी होगा। तो इस प्रकार से पहले सेंटर का और 3 लेफ्ट के और 3 राइट के 7 रीडिंग हो गए हमारे यहाँ तक का। तो ये 7 रीडिंग ये सारे आएंगे इंटरमीडिएट साइड में। फिर से दूसरा स्टेशन है हमारा सेंटर लाइन पे का, समझ लो 10 मीटर पे या 20 मीटर पे। तो पहला रीडिंग ये, और फिर उसके ऊपर 3, 6, 9 मीटर, 3, 6, 9 मीटर पे। तो ये सारे रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में आएंगे। तो प्रोफाइल लेवलिंग के जैसा ही आपको क्रॉस सेक्शनिंग का भी साथ साथ में ही रीडिंग भरने पड़ेंगे, और साथ साथ में रीडिंग भरेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से आरएल मिल जाएंगे। अब इसमें से जो सेंटर पॉइंट वाला जो है 0, 10, 20 ऐसे जो रीडिंग आएंगे, वो आरएल जो है हमारे, वो आरएल हमारे काम आएंगे प्रोफाइल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन निकालने के लिए। ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन निकालने के लिए। और यदि हम लोग ये 0 के साथ में ये 3 और 3 6 रीडिंग, ये 7 रीडिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो ये 7 रीडिंग का इस्तेमाल किया, ये आरएल है हमारे 7, ये 7 आरएल का इस्तेमाल करके हमको क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ता है जमीन का। अब वो क्रॉस सेक्शन कैसा निकालेंगे, तो सबसे पहला काम तो फील्ड बुक में आपको ये सारे आरएल तो निकाल लेना है पहले, और ये होने के बाद में फिर हमको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए फिर से हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन बना लूँगा यहाँ पे। ये लाइन में सेंटर में रीडिंग रहेगा मेरा 0 मीटर का या 10 मीटर का या 20 मीटर का, जो भी आरएल। अब ये क्रॉस सेक्शन एट 0 मीटर निकाल रहा हूँ मैं, तो पहला रीडिंग मेरा 0 मीटर है। फिर 0 के मैंने 3, 6, 9 मीटर पे 3 पॉइंट लिए थे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 3, 7 और 10 पे लिए थे समझ लो। तो कम ज़्यादा ले सकते हैं आप, लेफ्ट साइड का और राइट साइड की रीडिंग अलग अलग कर सकते हैं आप, जो लिए थे, लेकिन वो आपकी नोट रखना पड़ेगा आपको फील्ड बुक में। तो फिर मैंने वो पिछले वाले टेबल पे से 0 मीटर का आरएल यहाँ लिख लिया, फिर लेफ्ट साइड के 3 मीटर का आरएल यहाँ लिखा, फिर 6 मीटर का आरएल यहाँ लिखा, 9 मीटर का आरएल यहाँ पे लिखा। ये लेफ्ट साइड के 3 आरएल हो गए, और ये हो गए राइट साइड के 3 आरएल। तो ये आरएल मैंने यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पे आपको डेटम चूज करना पड़ेगा फिर से। अब ये डेटम आपको एक तो चूज ऐसा करना है कि जो प्रोफाइल लेवलिंग में आपने लिया था ना 205 का, तो उतना ही लो यहाँ पर भी आप जनरली। लेकिन जो प्रोफाइल लेवलिंग के लिए आरएल लिया था वो भी आरएल ऐसा चाहिए कि वो जो क्रॉस सेक्शन के आरएल भी जो आए वाले हैं ना उससे सबसे कम वैल्यू चाहिए, ताकि आपको एक ही डेटम से सारा क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं आप। तो उस प्रकार से मैं यहाँ पर अब यहाँ पे सबसे कम वाला आरएल मेरा 99 मीटर है, तो मैंने 95 मीटर को चूज कर लिया डेटम करके।
तो हालांकि आपने प्रोफाइल लेवलिंग में भी 95 ही लेना चाहिए, यानी दोनों जगह एक जैसा रखो, प्रोफाइल में भी और क्रॉस सेक्शन में भी। तो ये 95 मीटर का RL डेटम हो गया मेरा, ये लाइन। तो अब मेरा यहाँ पे RL है 99.20 का, माइनस 95 करूँगा मैं तो यहाँ पे 4.2 बचेगा, सो 4.2 की मैं लाइन बनाऊंगा यहाँ पे। इसी प्रकार से 100.6 में से 95 माइनस किया तो 5.6 की लाइन यहाँ पे बनाऊंगा। ऐसी ये वर्टिकल लाइन आपको बनानी है, ये वाली। अब ये वर्टिकल लाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की स्केल लिया मैंने, तो ये पॉइंट मिल गए मुझे। अब ये पॉइंट को मैंने यदि ज्वाइन कर लिया ये वाला ऐसा, तो ये हो गया मेरा वहाँ का RL। तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया मेरा यहाँ पे, एक्चुअली ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शन। तो ऐसा 0 मीटर पे एक क्रॉस सेक्शन, फिर उसके आगे 10 मीटर पे क्रॉस सेक्शन, फिर 20 मीटर पे, ऐसे सब जगह पे आपको क्रॉस सेक्शन निकालने पड़ेंगे अर्थवर्क का कैलकुलेशन करने के लिए। और इस प्रकार से ये क्रॉस सेक्शन का भी ड्राइंग और एल सेक्शन का भी ड्राइंग, ये सारे ड्राइंग बन जाएंगे। तो उस पे से हम लोग अर्थवर्क के कटिंग और बैंकिंग, यानी कटिंग और फिलिंग, इसकी क्वांटिटी हम लोग निकाल सकते हैं। सो इन दैट वे दिस टाइप ऑफ survey is required. So here in this unit, the 3 important practical application of the leveling survey that we have seen. First we have seen that is fly leveling, then second we have seen profile leveling, and along with that we are also doing the cross sectioning. So thank you for watching this video lecture. In the next lecture again we will go for very interesting topic, that is concept of curvature and refraction and reciprocal leveling. Till then, thank you and goodbye for watching this video lecture. Thank you.